One major and 3 jawans have been injured in an encounter that took place in Kupwara. This days after Prime Minister Narendra Modi took a very tough stand on terrorism. और सबसे खास बात ये कि 1500 भारतीय सुरक्षा बल असम राइफल्स के होंगे। जम्मू में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए बड़े पैमाने पर अब फैसले लेने शुरू किए जा चुके हैं। So good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this special episode where we are going to analyze the security situation, the emerging threats to the border state of Jammu and Kashmir. 2021 से हमने देखा है कि तकरीबन 33 militant related attacks हुए हैं जम्मू कश्मीर में, and in the last 6 months only we have lost 11 security personnel. They have laid down their lives at the altar of the nation, and a lot of civilian casualties have also happened, starting from Riyasi attack, where the bus was attacked, bus carrying the pilgrims was attacked, and उसके बाद हमने देखा किस तरह से लगातार पाकिस्तान के स्पॉन्सर टेररिस्ट के द्वारा कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ हर जगह पे अटैक होते जा रहे हैं. This is a really alarming situation, and the Indian security establishment is trying to do whatever it can to ensure that we do not lose any more precious life our soldiers. And to discuss this very sensitive issue, we have two very senior army veterans with us today. First of all, we have Colonel A.K. Sharma sir, Kirti Chakra, Shaurya Chakra Sena Medal, who is also a Kargil war veteran and has a very close understanding of the security situation in Jammu and Kashmir. Also joining us today is Colonel Ajaydeep Singh, who is US Commendation, Kargil War veteran, and who has been involved in aviation in the Kashmir Valley, as well as in the other regions, including Siachen. So we will try to first understand from Colonel Ajaydeep, sir, what do you think कि ये किस तरह की ये जो सिचुएशन अभी पैदा हो रही है जम्मू कश्मीर में? What is your assessment of it? What do you think? Why is it picked up so much now? So, if we go into the initial last few decades, the focus has always been on Kashmir Valley, right? And whenever the valley is not able to erupt or give them results to the Pakistanis as they always want, they've tried to change the focus either towards the Ladakh region when we had the Kargil conflict, the Operation Vijay. Now they've probably, with the new chief coming in, who's an ex-ISI expert, they've tried to shift the focus down south towards the Jammu region. So that is the first thing which has happened, and it's something which they are just trying to exploit the gaps. It's not something which is a permanent kind of a battle which they have won, or a war which they have won. They are just trying their luck. They have been able to get a few successes, and but I also am very sure that, as I said, it's a very temporary kind of a action which has happened, and results which they've achieved. We are going to bounce back very soon, and we will definitely prove our mettle again. Okay, all right, Colonel. I think you pointed out really valid points. अब हम कर्नल शर्मा सर, आप सिंस आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग भी करते हैं, आपने वहाँ सर्व भी किया है, और आप जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी को बहुत बखूबी तरीके से समझते हैं आप. तो आपका सर क्या रुझान है, क्या एनालिसिस है आपका, कि जैसे हम देखते थे सांबा में काफी ड्रोन अटैक्स भी हुए पिछले कुछ दशक में, और अंडरग्राउंड टनल्स भी वहां पाई गई, ये लेबरर्स के तौर पे या जो कुरियर जो पोर्टर्स हैं उनके तौर पे मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट करते रहे. तो सर आपका अपना एक्सपीरियंस जब आप सर्व कर रहे थे इस रीजन में, आपको क्या लगता है तब से लेके अब तक मिलिटेंसी का स्पेक्ट्रम किस तरह से चेंज हुआ है? और ये जो रिसेंटली हम देख रहे हैं पिछले 1 से 1.5 महीने में बहुत ज्यादा जो एक्टिविटी बढ़ी है, आपका क्या एनालिसिस है सर इसको लेकर? 2019 में आफ्टर दिस एवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370
और उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए हैं सारे, चाहे वो क्या बोलते हैं इसको, गलवान हुआ हो या उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक वगैरह, ये सब कुछ अगर आप इसको आप जोड़े हैं तो स्पेशली आर्टिकल 370 के बाद जो है ये पैटर्न चेंज होना शुरू हुआ है सीआई का, और टोटली मतलब है कि बिल्ट अप एरिया से सीआई जो है वो शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स जंगल्स एंड हिली एरिया, माउंटेन्स। और पिछले 21 से लेके अभी तक 24 तक जो 3 साल में जो इंसिडेंट हुए हैं, तो इनमें अगर आप मिलिटेंसी का जो है वो पैटर्न देखें तो वो इट इज मोर लाइक नॉर्थ ईस्ट। अर्लियर इट वाज नॉट देयर कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्बुश किया जाता हो। ये होता था कि हम ढूंढने के लिए जाते थे उनको, या वो फिदान अटैक के लिए आते थे, या हम जा रहे हैं तो वो आईडी प्लांट कर देंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे, या ये भी होता था कि दूर से वो फायर करके जस्ट शो ऑफ फायर की हमने मिलिटेंट्स ने कॉन्वॉय के ऊपर फायर की है। लेकिन एम्बुशिंग द यू नो सिक्योरिटी फोर्सेस, और पिछले 3 साल में उन्होंने लगभग वो जगह ढूंढी है जहां पर हम थिन आउट हुए थे। ये रियासी वाला एरिया, ये पुंछ राजौरी वाला एरिया, ये वो एरिया है जहां पर पहले कोई ऐसा टाइम था 2009-10 में था मैं वहां पे, और उसके बाद 14-15 में था। उस टाइम पे हम ये सोचा करते थे कि किसी भी तरह से अगर मिलिटेंट आर्मी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करता है तो वो बच के कैसे जाएगा, वो कहीं ना कहीं फंसेगा, वो निकल नहीं सकता। बट अभी सिचुएशन ये हो रही है कि वो सक्सेसफुली अपनी कार्रवाई करने के बाद दे आर यू नो, जिसको बोलते हैं अनविजिबल गोस्ट, दिखता ही नहीं है वो कहाँ चले जाता है, और सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे को कम सक्सेस मिली है। ये सब होने के बाद वो थोड़ा सा चिंताजनक है। राइट सर। सर लेकिन हमने इसमें मैं देखा है नवजोत, I would like to add one more thing. Right. They have also got some extra support now in the local populace. जो वहां की आम जनता है उसके अंदर भी इनको मर्ज होने का ज्यादा सपोर्ट प्रोबेबली मिल रहा है, जो कि पहले नहीं था. And that is also a reason where they are able to, you know, lie dogo. They are able to easily hide themselves amongst a few people who are their supporters, and one, wait for their opportunity to attack, and two, also after, as Colonel RK just said, वो जो छुपाव अटैक होने के बाद जहां पे वो कर रहे हैं, वो शायद वहां से भी उनको काफी हेल्प मिल रही है. सर आपने से बात की कि लोकल उनको सपोर्ट काफी मिल रही है. अभी हमने रिसेंटली जो रिपोर्ट्स और सोर्सेज के थ्रू जो पता भी चला है, उनका मोडस ऑपरेंडी थोड़ा सा चेंज हुआ है सर पहले से. तो जैसे वो सैटेलाइट फोन्स का यूज कर रहे हैं, चाइनीज सैटेलाइट फोन्स का यूज कर रहे हैं, वो स्लीपर सेल्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं रादर देन जो उनका ट्रेडिशनल जो चैनल्स होते थे. और जो फूड का प्रोक्योरमेंट का, जैसे खाना जो जंगलों में, जैसे आरके सर ने कहा, वो जंगलों में छुपे छुपे रहते हैं. अभी उनका थोड़ा मॉडस ऑपरेंडी थोड़ा सा, जैसे रिपोर्ट्स आई हैं एसएसजी के कुछ कमांडोज, तो पाकिस्तान के एसएसजी के कमांडोज हैं, वो कुछ इन्फिल्ट्रेट किए हैं. तो आरके सर आपका क्या असेसमेंट है, जैसे जंगलों में ये छुप के रहते हैं जो, तो जैसे आपका कोई पुराना अपना एक्सपीरियंस हो जब आपने सर्व किया है, उस वक्त का कोई वाकया जब जंगलों में किस तरह से छुपते थे और आप लोग किस तरह से इनको ढूंढ के निकालते थे, और अभी क्या चेंज हुआ है जो थोड़ी हमें दिक्कत आ रही है? हाँ, ओके, व्हेन आई वाज ऑपरेटिंग इट इज इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन विजय, या उसके बाद जब भी हम एलसी वगैरह पे रहे तो उस टाइम पे बैट एक्शन हुआ करते थे, उसको बॉर्डर एक्शन टीम बोलते थे, बैट एक्शन हुआ करते थे पाकिस्तान की तरफ से. तो ये होता था कि जस्ट क्रॉस जो सामने वाली पोस्ट है उसमें जाके आर्मी की किसी पोस्ट पे 5-4 को मार दो, किसी का गला काट दो, वेपन शपन लेके भाग जाओ, और बहुत मतलब क्विक एक्शन होता था. इस जो जिस तरह के ऑपरेशन अभी हो रहे हैं इनमें मतलब है कि स्पीड वही है, इसमें उसी तरह से एक्शन हो रहा है, और मतलब कि मिलिटेंट बहुत ज्यादा हमारे को ट्रेंड लग रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब है कि वो एडवांस वेपनरी यूज कर रहे हैं, लीथल वेपन है उनके, और अपनी कार्रवाई करने के बाद उस स्पीड में वो वापस निकल भी जा रहे हैं. तो ये सारा कुछ लगता तो उसी तरह का है. बट देन कम्स की डोडा और पुंछ राजौरी नहीं, अपना रियासी जो बस पे अटैक हुआ है, डीप इनसाइड इतना मैं आई एम डाउटफुल कि उनकी एसएससी वगैरह यहाँ तक आ सकती है. हियर आई हैव अ क्वेश्चन मार्क. ओके
So you बाकी doubt उनके एक्शन सारे जो हुए हैं, जो 49 के ऊपर हुआ है, जो 48 के ऊपर हुआ है, इनिशियली 610 के ऊपर हुआ है, जैसे उन्होंने 63 और 9 पैरा को एम्बुश किया था, या उनकी कैजुअलिटी हुई है, उस सब में ये लग रहा है कि हाईली ट्रेंड, मतलब है कि पीपल आर देयर, दे आर नॉट नॉर्मल मिलिटेंट, बट देन Right. कम्स इट इज, हाँ, कि डोडा और अपना भद्रवाह किश्तवाड़ में और आप रियासी में आके उस तरह का एक्शन करके बैठे हुए हैं, उसके लिए सर्वाइवल के लिए आपको बहुत जबरदस्त, मतलब है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, और इतना कुछ अभी तक नोटिस में नहीं आया है। वी वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वो, हम ये तो बोल रहे हैं कि उनको खाना पीना पहुंचा रहे हैं, लोकल सपोर्ट है, लेकिन अभी तक हम एक को भी नहीं पकड़ पाए कि पता लगे कि क्या हो रहा है। ओके सर, जो पुंछ रजौरी की आपने बात की, पुंछ रजौरी में जो अटैक हुए थे कुछ महीने पहले, तो वहां पे जो पीपल एंटी फासिस्ट फोर्स PAFF उसने उसकी जिम्मेदारी ली थी, और जो रीसेंट अटैक्स हो रहे हैं, जो इसमें कश्मीर टाइगर्स करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो दोनों एक जैश के ही सिस्टर कंसर्न है, सिस्टर बॉडी है। तो कर्नल अजय दीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभी कि जैसे हम देख रहे हैं आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के जो नए चीफ हैं, आर्मी चीफ भी हैं, और 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उस टाइम वो ISI के चीफ थे, तो उनकी इसमें क्या कहते हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट, और पाकिस्तान ISI का किस हद तक रोल हो सकता है? व्हाट इज योर असेसमेंट? इज इट मोर ऑफ अ प्रॉक्सी वॉर, और इज पाकिस्तान प्लानिंग समथिंग बिग? कुछ बड़ा होने जा रहा है क्या? देखिए, there are 2-3 things which you've asked me, so I will start with the last one. पाकिस्तान की अभी इतनी औकात नहीं है कि वो अभी कर सके इतना बड़ा, right? If you see the economic condition of Pakistan, it is in a very bad state. आज की डेट में उनके पास अपना अंदर इकोनॉमी को संभालने के लिए, इन्फ्लेशन इज एट एन ऑल टाइम हाई, देयर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज आल्सो, लोगों के पास एक्चुअली पैसा नहीं है in the country, and people are actually wanting to leave Pakistan and move to the Middle East or some other country. So planning something big is not possible for Pakistan to execute right now. It may plan, but it may not be able to execute right now. दूसरा, उनके जो चीफ है, yes, as I said earlier also, he has been with the ISI, he has led the ISI, and he has now taken over. So definitely there will be a change with the change in leadership. कुछ ना कुछ तो फर्क आता ही है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप से फर्क आता ही है, and there may be other things which they might be wanting to execute in order to take the pressure off the army, क्योंकि उनकी आर्मी या उनकी ISI ने भी जवाब देना होता है आफ्टर ऑल उनके अपने देशवासियों को, उनकी लीडरशिप को. So these are things which keep happening, and as far as whether it is the Tiger Force or the other organization कि अभी इस बारी कौन उसके लिए क्लेम कर रहा है, these are all just front faces. Actually, we all know it, the whole world knows it, that it is only the ISI which is actually executing all these things. नाम जिस मर्जी का आप दे दीजिए, पेपर में खड़े होने के लिए, आप बताने के लिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है. It is all on behalf of the ISI, and they are just trying to take the pressure off from themselves in order to achieve something different, something more, because they have not been able to achieve a lot of success in the last few years. अगर आप देखें इससे पहले जब वैली के अंदर it was quite a decline, a very sharp decline. Such proactive measures taken by India and the armed forces के वैली के अंदर militancy बहुत कम हो चुकी थी. So this is where probably they were also feeling the pressure on themselves, and that is how they have shifted the focus down towards the Jammu region, towards riverine and hills, forested terrain, as Colonel Sharma just brought out. Absolutely. I agree with Colonel Ajay. I agree with Colonel Ajay, but one thing I would like to add on it कि ये जो गलवान हुए हैं, गलवान के बाद मेरे को लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ी सी शय मिली है. वो बड़ा तो कुछ नहीं कर पाएगा, he is not in capacity of doing anything bigger, but उसका सर्वाइवल इस छोटे मोटे पे ही है. इसके बगैर उसका जिंदा रहना मुश्किल है. राइटली जैसे इन्होंने बोला है कि उनकी ISI वगैरह को जवाब देने होते हैं, उनकी आर्मी को पब्लिक जो है थूकती है कि तुम कर क्या रहे हो, सारी जंगें हार रहे हो, और हमेशा मुंह की खानी पड़ती है तुम्हारे को किस चीज के तुम जर्नल बने बैठे हो.
तो उसका जवाब कहीं ना कहीं देने के लिए ना ये टेम्परेरीली हैप्पीनेस, टेम्परेरी स्माइल जो ना वो अपने सिटीजन को और अपनी फेस पे लाना चाहते हैं, उसके लिए दे विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद दिस। और There डेफिनेटली is, हाँ सर sorry, प्लीज। sorry, आप please continue. नहीं, और ये गलवान वगैरह के बाद जो है थोड़ा सा, और उसके बाद हमारा भी थोड़ा सा पोस्चर डिफेंसिव हुआ है, मतलब कि वी आर नॉट एग्रेसिवली, जैसे हमने ये स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक वगैरह, उस टाइम पे जो हमारे तेवर थे रिसेंट पास्ट में वो थोड़े से ढीले पड़े हैं। हमारे को ये तेवर नहीं दिखाने चाहिए किसी भी तरह से अपने एडवर्सरीज को। What has happened post Galwan Navjot is also that the focus of the country has become more towards China, right? China, yes. So जैसे कल आरके बोल रहे हैं, obviously there must have been some reposturing, some movement of forces, to concentrate more towards the Ladakh sector, to be able to ensure that our defenses there are equally strong, and on ground analysis must have been done by the local commanders. So probably some gaps which they are probably now able to exploit in a way, जिसकी वजह से जहाँ से let's say अगर आर्मी की जहाँ डिप्लॉयमेंट थी वहां अगर अभी पैरामिलिट्री की हो गई है डिप्लॉयमेंट, या कोई और लोकल पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो गई है, एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ सच थिंग्स some gaps sometimes arise. I'm not saying कि that the paramilitary is not capable or the local police is not capable, but कई बार डिप्लॉयमेंट्स चेंज होने में, यूनिट्स चेंज होने में टैक्टिक्स में फर्क आ जाता है, और उन टैक्टिक्स के फर्क आने से जो दुश्मन हमेशा ताक में बैठा हुआ है वो उसको बस एक मौका चाहिए होता है इस चीज के लिए। सो उस वजह से हो सकता है कि दे हैव बीन एबल टू गेट स्लाइटली मोर सक्सेस। आपने बात बिल्कुल सही बात की, जैसे गलवान की आरके सर ने भी और आपने भी बात की। चाइना हमारे नॉर्थ में एक बिगेस्ट एडवर्सरी बैठा है। इवन व्हेन आई वाज सर्विंग इन द नॉर्थ ईस्ट, तो हमने वहां पे देखा पूरा तवांग एक्सिस है आपका, फिर इधर आपका लद्दाख एक्सिस है। तो हम एक 2.5 फ्रंट वॉर फाइट कर रहे हैं। वी आर फाइटिंग विद अ बिगर एडवर्सरी ऑन द नॉर्थ विच इज मच स्ट्रॉन्गर, मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इकोनॉमिक पावर चाइना अपनी मसल्स को फ्लेक्स करता रहता है। उधर हमारे वेस्ट में पाकिस्तान है ऑन द अदर साइड ऑफ द रेड क्लिफ, और हमारे सदर्न जो इंडियन ओशन रीजन है वहां पे भी चाइना अपना मैरीटाइम हेजीमनी एस्टैब्लिश करने की काफी कोशिश करता रहा है। हमने देखा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो सीपैक है अपना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो, तो चाइना और पाकिस्तान के का ये जो नेक्सस है, इनफैक्ट काफी बार ऐसा होता है जो FATF में इंडिया और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ इट्स टेरर एक्टिविटीज, तो चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करता है। तो मेरा आपसे एक सवाल ये रहेगा कि हम सिर्फ कब तक हम ऐसा करेंगे कि कभी चाइना पे फोकस करेंगे या कभी पाकिस्तान पे फोकस करेंगे? हमें अपनी एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें ताकि वी आर वेल प्रिपेयर्ड कि दोनों तरफ के एडवर्सरीज को हम टैकल करने के लिए सक्षम हो जाए। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जहां हमारे जो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है जो आर्मर्ड व्हीकल्स का या जो डिफेंस की व्हीकल्स होती हैं जहां पे रिसेंट अटैक्स में, तो उनमें कुछ कमियां पाई गई हैं। आई थिंक सरकार को उसमें काफी एक ध्यान देना पड़ेगा ताकि जो हमारे जवान है उनकी जान को इतना हल्के में ना लिया जाए। उस पे जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है हमारी, उस पे कुछ कदम उठाए जाए। तो सर आप कर्नल शर्मा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, अबाउट द चाइना एंगल एंड अबाउट हमारी जो डिफेंस एडवांसमेंट की जरूरत है, उसमें आपका क्या रुझान है? नहीं, आई एग्री विद यू, और उसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो चाइना है चाहे पाकिस्तान है, हमारे को किसी भी तरह से कभी भी डिफेंसिव होके वहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान भी तो हमारे को तंग कर ही रहा है, तो वाई वी कैन नॉट डू सेम विद द चाइना। हम ये लेके बैठ जाएं कि चाइना जो है बिगेस्ट एडवर्सरी है, बिगेस्ट एडवर्सरी है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन आर्मी इज कैपेबल ऑफ, दे नीड्स डायरेक्शन, और वहां पर सिर्फ उनको प्लेन मैसेज दे दिया जाए चाइना को कि इफ यू विल वायोलेट द LAC तो वी विल फायर, इफ यू विल क्रॉस वी विल फायर, वी विल नॉट वेट वाच टॉक और डंडा लेके घूमेंगे। ये मैसेज तो उनको पक्का जाना चाहिए। दिस मैसेज इनडायरेक्टली विल गो टू पाकिस्तान आल्सो कि यार इन लोगों के साथ जो है, ठीक है। और अगर हम डिफेंसिव होके बैठ जाएंगे और सिर्फ बातचीत पे छोड़ देंगे सब कुछ, तो ऑल दिस थिंग्स विल हैपन जो अभी 2021 के बाद शुरू हुई और पिछले 3 साल से हम झेल रहे हैं।
आई एम कन्विंस कि ये कम नहीं होने वाला, ये बढ़ेगा। दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट कि हाँ हमारा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम दोनों के साथ कैसे वो मैसेज शुड बी क्लियर कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जैसे जो व्हीकल्स को लेके या गियर को लेके, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेके, उसमें आपने क्लोजली देखा है कारगिल वॉर में भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या गियर को लेके। अभी क्या वो गैप फिल हो चुका है या नहीं, वो पूरी तरह से डायरेक्शन में जा रहे हैं? वो मैं अभी रिसेंटली 1.5-2 महीने पूरा मतलब है कि कारगिल, द्रास, ले, जांगला सब जगह घूम के आ रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि वो जल्दी पूरा होने भी नहीं वाला है। और दूसरा, हम एक्सक्यूज ये ले लेते हैं कि वो गलवान में आके हमारे एडवर्सरी ने इसलिए ये किया है क्योंकि वहां पर हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे थे, तो उसने आके ये किया तो हम कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं रोक देंगे। दैट वी आर डूइंग एट अवर सॉइल, हम अपनी टेरिटोरी में कर रहे हैं, तो उसका जवाब सीधा जिस तरह से इंटरनेशनल बाउंड्री पे दिया जाता है उसी तरह से देना चाहिए, चाहे हमारे से कोई बड़ा है चाहे हमारे से कोई छोटा है, चाहे हमारे से ज्यादा ताकतवर है। तो जो कमजोर होता है तो वो लड़ना बंद कर देता है कि यार ये कमजोर तो नहीं हूं। मैं नहीं मानता हूं कि इंडियन आर्मी जो है चाइनीज आर्मी से कमजोर है, या आवर नेशन, इट इज नॉट दैट नेशन जो 62 में था। इंडिया इज नॉट सेम एज इट वाज इन 1962। तो जब तक हम डिफेंसिव होके बैठेंगे तो सारे एडवांटेज लेंगे हमारे डिफेंसिव होने की। सर एक सवाल है, अगर इंडियन आर्मी को पूरी छूट दे जाए तो एक दिन के लिए छूट दी जाए, तो क्या आप मानते हैं कि हम उनको धूल चटा देंगे? सनम लेके डूबेंगे, सनम लेके डूबेंगे। ठीक है, कैजुअलिटीज होंगी लेकिन उधर भी कम नहीं होंगी, डबल होंगी। एकदम एकदम एब्सोल्युटली। आप रजांगला का देखो, 114 लोग अंडर मेजर शैतान सिंह, 1400 चाइनीज मार रखे हैं वहां पे, एंड इट इज ए हिस्ट्री रिकॉर्डेड, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिल्कुल सेम कैन बी डन इवन टुडे। राइट सर, राइट। सो कर्नल अजय दीप, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अभी जैसे हम ये देखते हैं कि जो अभी जो अटैक्स हो रहे हैं, मिलिटेंट अटैक्स पहले भी हुए हैं, नई बात नहीं है जम्मू कश्मीर में। 1990 से जब से ये मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ है तो कंटिन्यूसली बीच में सीज फायर होता है, फिर वायलेशन होता है। पर ये जो अभी के अटैक्स हैं इनमें कुछ तो अलग है। 5-7 की टुकड़ी में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि 60-70 से ज्यादा मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट किए हैं एलओसी से, और ये 5-7 के ग्रुप्स में छोटी छोटी टुकड़ियों में अटैक करके फिर जंगलों में गुम हो जाते हैं। तो एज ए समवन हु अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी सिचुएशन, जिन्होंने आपने उस टोपोग्राफी में सर्व किया, आपने एविएशन में थे आप, तो आपको क्या लगता है एयर सपोर्ट किस तरह से इसमें हेल्प कर सकती है? ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है? और क्या आपकी असेसमेंट है कि ये इतना अभी कुछ नया टैक्टिक्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं गुरिल्ला वारफेयर का ये जो पाकिस्तानी ब्रेड मिलिटेंट्स हैं? ओके, so firstly tactics कोई नए नहीं है, as कर्नल शर्मा said, ये पहले भी चलते थे, बैट एक्शंस पहले भी होते थे। इट इज जस्ट दैट पहले उनके पास इतना टेक एडवांसमेंट नहीं था इन टर्म्स ऑफ सैट फोन्स और इन टर्म्स ऑफ अदर डिवाइसेस। अभी टेक बढ़ गया है, तो एज अ रिजल्ट we also have increased our capability, our tech and human capabilities. You are an intelligence officer yourself, you also know okay, over the years how we have progressed in both the fields. So that has also increased, and that is certainly something which I think we should get cracking in the region which is presently facing a lot of these attacks, because as we have applied these tactics in the valley, there was a lot of sadbhavna done by the defense forces there. If we get the local population, the younger impressionable population towards our side, and we are able to cultivate a much more sympathetic response towards us, they will not get any respite. इनको logistic support नहीं मिलेगा। ये जो जाके जंगल में छुप रहे हैं, as Colonel Sharma was also mentioning, खाना तो कहीं से मिल रहा है ना इनको। It's not coming from across every day, right? It is they are getting support from somewhere within our own country. So the population needs to understand this, right? That we are what we are doing and what they are doing and how it is harming the nation as a whole. Okay. And secondly, when it comes to aviation support has always been there. It has been there right at the forefront for every operation. Colonel Sharma would have vouched for it. He's also seen plenty of action.
कि आर्मी एविएशन ना कभी पीछे कभी हटी है, ना आई एम श्योर कभी हटेगी आगे। एंड जैसे मैंने एक बारी पहले भी आपको नवजोत बताया था कि जब एक आदमी ग्राउंड पे जब वो हेलीकॉप्टर देखता है ना अपने पास आते हुए, तो हर तरीके की उम्मीद जाग जाती है कि अब ये लड़ाई मेरी में है और मैं जीत जाऊंगा इस लड़ाई को, बिकॉज द अमाउंट ऑफ सॉरी कल शर्मा बिल्कुल, एब्सोल्युटली He's एग्री giving you, विद he's giving you a thumbs up. He's अच्छा, giving you a ओके, thumbs up. ऑलराइट, ओके। तो वो सपोर्ट तो हमेशा रहता है। हम वी आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फोर्स एंड वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट ऑल ऑपरेशंस इन एनी काइंड ऑफ टेरेन, right? But we must understand that we have to quickly get all hands on ground on and all our resources working to be able to restore the situation as early as possible. सर जैसे आपने बात I would like to tell you, हम्म, Navjot, that in Valley, I was myself and my company commander were very seriously got wounded. तो उस टाइम पे हमारे को लग रहा था कि ये तो वहां तक पहुंचते पहुंचते सारा खून ही निचट जाएगा, तो बचेंगे कैसे। बट विद इन 5 मिनट ना, 5 तो नहीं, 10 to 12 मिनट वो चाप रखे वहां पे, पता नहीं कैसे घास भास में कैसे करके लैंड कर गया। देन प्रायोरिटी वाज गिवन कि पहले किसको ले जाना है और दूसरे बार किसको ले जाना है। और this salute was for the aviation, all the aviation officers. Thank you, thank you. After 20 minutes we were there at 92 BH. So आधा हौसला आपको वैसे ही आ जाता है कि वो अब नहीं मरने वाले हो, अब बच गए। एक उम्मीद जाग जाती है, एक उम्मीद जाग बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल देते हैं। उन ऑपरेशनल लर्निंग से क्या सीखा जो आज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज अभी हम थोड़ा सा ये बड़े तीव्र गति से अटैक्स हो रहे हैं, तो आपकी लर्निंग से आप क्या एक मतलब एक सोचते हैं कि ये चीज इम्बाइब करके हम कुछ बेटर रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, ये सारी ट्रेनिंग सबकी, जो मेरी ट्रेनिंग हुई है बाकी सबकी भी वही ट्रेनिंग हुई है। बट जब ये हुआ ना कि देन फोर्सेस मतलब कि मूव्ड आउट फ्रॉम, जैसे रियासी में पूरा डिवीजन हेडक्वार्टर था निकल गया, और पुंछ रजौरी में था वो हो गया, यूनिफॉर्म फोर्स पूरी चली गई, डेल्टा फोर्स जो है उसको निकाल दिया गया। इनके जाने से जो इफेक्ट हुआ वो तो हुआ, जो बचे हुए फौज थी उनको भी ये लगा कि अब कुछ है नहीं, सारे जा रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, और उसकी एडवांटेज जो है वो लेके जो भी अभी पिछले 2-3 साल में जो अटैक हुए हैं, और इतने ज्यादा हो जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। एक आधा हो गया चलो ठीक है, खत्म हो जाएगा, पकड़ लेंगे, बट सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाएगी। बाकी इंडियन आर्मी इज वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड, हर एक उसमें ना, मतलब है कि अगर आप पुंछ रजौरी की तरफ जाओ तो उसका अलग से बैटल स्कूल है, आप कश्मीर में जाते हो तो उसका अलग से बैटल स्कूल है, आप लेह में जाते हो तो कारगिल का बैटल स्कूल अलग से है। तो हर जगह के लिए हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और आवर फोर्सेस आर एज फिट, एज स्मार्ट एंड एज एडवांस जैसे एसएसजी है। लेकिन हमारे को अनफॉर्चुनेट पार्ट की पाकिस्तान कई बार सरप्राइज कर जाता है, लाइक उसने हमारे को कारगिल लड़ाई में भी सरप्राइज किया था। तो ये हम हमेशा उस पर विश्वास कर देते हैं, हर बात में हम बोल देते हैं कि वो छोटा भाई है, या मजाक में ये भी बोल देते हैं कि हम बाप हैं, लेकिन वो हर बार उसकी जो है धोखे से काम चलाता है। तो सर हाँ जी सर, कैरी ऑन सर। जो भी ये अटैक हुए हैं, या 600 या 500 ये एसएससी वगैरह वाले बता रहे हैं कि यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा वो कर सकते हैं, या उनका सर्वाइवल इतने लोग आगे हैं और वो मतलब है कि छुपाव में वो बैठे हुए हैं और हमारे को दिख नहीं रहे, ऐसा मैं नहीं मानता। कुछ हो सकते हैं कि आए हों, कुछ मिलिटेंटों ने एक्शन किए हों, और कुछ जो है एलसी पे उन्होंने बैट एक्शन किए हों, ये मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन परमानेंटली आके वो यहाँ पर बैठे हो, आई हैव अ सीरियस डाउट ऑन दैट। सर जैसे वो पृथ्वीराज चौहान वाली गलती हमें नहीं करना चाहिए कि हर बार मोहम्मद शोरी आएगा हम उसको छोड़ देंगे, आई थिंक वो गलती करना सही नहीं है। वो किए हमने, लेकिन अभी आगे आने वाले टाइम में ऐसे नहीं करने वाले हैं। राइट। सर कल जैसे कल शर्मा ने भी कहा कि पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज या कभी कभी हमें सरप्राइज कर देते हैं, तो हमारी प्रिपेयर्डनेस को आप किस तरह से देखते हैं, जो हमारी डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज है, और इंटेल की भी आपने बात की, क्योंकि बेसिकली वो सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी जो हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं रेडियो ट्रांसमीटर्स के थ्रू, तो हमें बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस पे ही रिलाई करना पड़ रहा है। तो व्हाट इज योर असेसमेंट, हम इन सारे चैलेंजेस को, ऑल्दो आवर आर्मी एंड ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसीज आर वेल इक्विप्ड इन सब चैलेंजेस को डील करने के लिए,
But आपका क्या रुझान है कि what is the way forward now? What is the next step that Indian security establishment headed by the National Security Advisor NSA Ajit Doval sir? What is the way forward? It's like just hit the enemy where it hurts the most. What is your idea? So, firstly, as I had mentioned earlier, also nothing can replace human int, right? So our human int needs to be extremely strong. There are always tech int measures, eel int measures, electronic int जो मैं बता रहा हूँ, ये सब तो हम implement कर ही सकते हैं. We have the resources. We've always had them in the army. We have eel int units to be able to easily track them on. The other thing which I want to emphasize is that as I was talking earlier, due to the reposturing of various units which has happened and formations, and our focus shifting more towards the eastern front rather than the western front, somewhere probably the complacency or the attitude has become that of a relaxed one, because you're not expecting a certain amount of reaction from the enemy. So I feel Right. हमें हमेशा मुस्तैद रहना चाहिए. दुश्मन हमेशा दुश्मन ही है, उसको कभी कमजोर या ताकतवर ज्यादा नहीं समझना. इट इज ही इज जस्ट दुश्मन. उसकी टैक्टिक्स वैसी ही रहेंगी. एज लॉन्ग एज हम अपनी तैयारी में रखें अपने आप को, और अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखें, तो कोई रीजन नहीं है कि हमें कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है. Right, right. And even when it comes to the Chinese on the Ladakh side or the other side, Navjot, you have heard a very famous saying: "It is not the size of the dog in the fight; it is the size of the fight in the dog." Fight in the Right. dog that matters. हाँ. So even in 1962, there were plenty of battles wherein Colonel Sharma ने तो एक सिर्फ रिजांगला का बताया, but plenty of battles where the Indian Army proved its mettle. Plenty of True, sir. battles, right? Absolutely. And it was just because of some poor decisions, like we had the Battle of Namkachu and other battles. My own regiment was in Walong, and my own regiment displayed extraordinary courage. The officers and the Jawans in the Battle of Walong were extremely brave, even in the face of the enemy. Our gun position was overrun by the Chinese. We had to destroy the guns, and it took many days for the entire troops to fall back to RHQ. And there are plenty of tales of valor and bravery. So at no point should we even consider that we are in any way weak. No, we are not. We are, in fact, if you go down into deep dive into the psychology of both the forces and the way we are actually trained, you'll certainly realize that Indian Army is on a much higher pedestal than the Chinese Army. Absolutely. Right? Morality We is on our actually, side. Morality yes, is definitely on our side. we know how to fight, and we know how to fight till the finish. Right. Right? So never ever think that. I mean, we don't, as even as a veteran today, I don't think that Chinese है तो हम पीछे हट जाए. नहीं यार, वो है तो है, हम भी तो हैं. Right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो सही बात है ना कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा. कुछ बात है कि बिल्कुल. हस्ती मिटती नहीं हमारी. तो हमारी हिस्ट्री मिटा दे इतनी किसी की औकात नहीं है, पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी हो. करण बिल्कुल. शर्मा, I'll come back. आप सर, आप सारागढ़ी याद करो, उसमें बिल्कुल, बिल्कुल. कोई कुछ था, मतलब है कि पैरेलल. बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं था वहाँ पे. बिल्कुल. That's one of the historical battles that go down in the annals of history. Colonel Sharma, I'll come back to you. आपने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की बात की. उसके बाद हमने देखा काफी डेवलपमेंट भी हुई है जम्मू कश्मीर में, और मिलिटेंसी काफी हद तक कश्मीर वैली में तो एलिमिनेट हो चुकी थी. जो सपोर्ट सिस्टम था, स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स थे, स्लीपर सेल्स थे, काफी हद तक एलिमिनेट हुए. और सुप्रीम कोर्ट की एक जो डायरेक्टिव था कि सितंबर में असेंबली इलेक्शंस भी करवानी है जम्मू कश्मीर में. और जो रिसेंटली कंक्लूडेड जो पार्लियामेंट्री लोकसभा की इलेक्शंस हुई हैं, वैली में 57% वोटिंग हुई है. तो यकीनन जो हमारे दुश्मन है ऑन द अदर साइड ऑफ द रेड क्लिफ, वो भी इस चीज का संज्ञान तो ले ही रहे होंगे. तो वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो, सही तरीके से हो, लोगों का विश्वास वापस से जागे, जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है. तो आप इस तरह को ये जो हो रहा है पिछले कुछ 1 से 2 महीने तक, आप क्या पाकिस्तान को डेस्परेशन देखते हैं पाकिस्तान की,
कि बौखला गया है और अब कुछ ना कुछ करना चाह रहा है? नहीं, डिस्परेशन तो 47 के बाद डिस्परेशन में तो वो हर लड़ाई हारे जा रहा है। वो 47 हारा, वो 65 हारा, वो 71 हारा, कारगिल वार हारा, उसके 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया, तो और उस बेचारे की क्या जान लोगे आप? ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि जो आपने बताया है, वैली में तो बिल्कुल अभी क्लीन है। कोई इक्का दुक्का स्लीपर सेल बैठा हो, मेरे को नहीं लगता कि कोई मिलिटेंट वगैरह वहां पर ज्यादा बैठा होगा, या कोई इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता होगा, तो वो कोई अगर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा होगा तो वो बेचारा एलसी पे ही मारा जा रहा है। बट डेफिनेटली ये सीआई जो है ना शिफ्ट हुई है, इट इज साउथ ऑफ पीर पंजाल। ये पुंछ रजौरी और ये जो भी माहौर एरिया और जो पहले वाले थे ना 96, 98, 2000, 2007, 8 तक रही थी ये मिलिटेंसी, वहां पर वापस आके ये पनपना शुरू हुई है। और वापस वहां पर इसीलिए आई है कि आईसी गैप्स, ठीक है, कि वो जो हमने वैक्यूम क्रिएट किया था तो उसकी वजह से ये सब हुआ। दूसरा एक ऑल दी कंसर्न उनको मैं ऐसे ये मेरा अपना वो है जो हमारी वर्किंग बाउंड्री है फ्रॉम लखनपुर मतलब पठानकोट टू अखनूर, सारा इन्फिल्ट्रेशन आई गेस की यहाँ से ये बढ़ा है। पहले भी आपने पठानकोट देखा होगा जब हुआ था दीनानगर वाला वो इंसिडेंट हुए थे, तो ये एक एरिया है जहां से मेरे को लगता है कि सारी फोकस हमारी पलांवाला से वहां तक कारगिल तक या जो भी है उड़ी तक वहां पे लगी हुई है कि इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। और आज सुबह भी बीएसएफ ने सांबा में एक मिलिटेंट मारा है, एक इंट्रूडर मारा है जिससे AK-47 मिली है, बहुत सारा अम्युनिशन असला मिला है। और पिछले मतलब कई सालों से वहां पर कभी सांबा अटैक, कभी कठुआ अटैक, कभी दीनानगर, पठानकोट एयरबेस, ये सारा कुछ चल रहा है। तो वी नीड टू फोकस ऑन दीज एरियाज। कि आपने देखा होगा कि इस हाईवे पे कितने भी जो पंजाब से ट्रक आते हैं तो रास्ते में इनकाउंटर हुए, तो वो कहाँ से आ रहे? अवर एडवर्सरी इज चेंजिंग टैक्टिक्स एवरी डे कि इनको कहाँ से भेजना है, कैसे पार भेजना है, तो हमारे को उसके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। बाकी पाकिस्तान जो है ये छोटी मोटी छिटपुटी जो भी मतलब है कि आप जो स्कूल में कमजोर बच्चा होता था वो आके अब सामने आमने की लड़ाई नहीं लड़ता था, वो दूर से पत्थर फेंक के भाग जाता था। तो पाकिस्तान की इससे ज्यादा औकात नहीं है, और लेकिन हमारे को जो इशू है वो एड्रेस करने पड़ेंगे। Right, sir. Right. Colonel Ajaydeep, do you have anything to say about this? I mean, about this, what is your assessment of this? I mean, about interrupting the elections and coming in desperation कि जो assembly elections है उसको influence करने की कोशिश कि थोड़ा delay हो जाए, क्योंकि लोग 57% वोटिंग देख के कहीं ना कहीं वो भी बौखलाए होंगे। तो आपकी क्या इसमें एक प्रतिक्रिया? ऑब्वियसली बौखलाए होंगे। मतलब आप देखिए आधी से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी तरफ है, इतने सालों से वो करोड़ों खर्च कर रहे हैं। देयर होल एग्जिस्टेंस टुडे, आईएसआई का एग्जिस्टेंस आज की डेट में इज ओनली एंटी इंडिया ऑपरेशंस। आईएसआई का अदरवाइज जरूरत क्या है? द होल सेटअप, और इतना पैसा, इतना इक्विपमेंट, इतना फॉरेन एड ये ले रहे हैं इन द नेम ऑफ कॉम्बैटिंग मिलिटेंसी व्हिच इन फैक्ट इज जस्ट सपोर्टिंग मिलिटेंसी। वी ऑल नो दैट। तो ये सारा उनका जो पूरा वजूद है वही खत्म हो जाएगा। सो अगर इट इज फॉर देम टू सर्वाइव, वो कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं दिखाने के लिए कि नहीं भी हम भी कुछ कर रहे हैं, हमने भी जवाब देने लोगों को। सो दैट इज व्हाई, तो दे आर आल्सो इक्वली टेरिफाइड, and probably their new chief or the new leadership is also thinking on the same lines कि भाई अगर हमने कुछ किया नहीं तो कल को हमारी इज्जत नहीं रहेगी हमारे देश के अंदर। Right, sir. So absolutely it is just that, it is और कोई reason नहीं है। Right. Very valid observations by both Colonel Sharma and Colonel Ajaydeep also. और सर साथ में जैसे हमने देखा कि जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है अभी कुछ, जैसे विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं वो पहले डिसबैंड कर दिया गया था। तो शर्मा सर आप क्या मानते हैं कि हमें सिविलियन पॉपुलेशन जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको भी कुछ थोड़ा सा ट्रेनिंग देनी चाहिए? डेफिनेटली देनी चाहिए। और जितने भी बॉर्डर एरियाज में सिविलियन है, खासकर हमारे ये लखनपुर पठानकोट से शुरू करें और पलांवाला, सुंदरपानी वाला एरिया, नौशहरा, तो वो सारी फ्रेंडली और प्रो आर्मी, प्रो इंडिया जो है वो पॉपुलेशन है जी।
और अगर आप इनको ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद 6-8 हज़ार 10 हज़ार जो भी महीने का उनको वो स्टाइफंड वगैरह भी देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये उनकी रोजी रोटी भी है और इट इंक्लाइंस देम टू अपने कंट्री के बारे में सोचो और मैं किसके लिए खा पी रहा हूँ। और उसमें चेक और बैलेंस भी रहता है, क्योंकि अगर एक गांव में 20-30 लोग ट्रेन हो रखे हैं तो वो सारे के सारे मतलब कि अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, या ये जो ट्रेनिंग और ये वेपनरी जो उसके हाथ में इसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली देनी चाहिए, और ये पास्ट में सक्सेसफुल भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। Any concluding comments from Colonel Ajaydeep before we wrap up our today's discussion? Any your pearls of wisdom about the audience who are listening, who are not very well versed with the entire security situation, who may benefit from it? What is your final takeaway about the understanding of the current situation? The current situation, firstly, I will conclude with the same remarks with which I opened, is a temporary situation. It is something which change of tactics have happened. And yes, they have been able to achieve a few successes. But we as a nation, as a military, are far more superior. There is no reason to either doubt our capabilities or apprehend in any way or have any kind of fear that it is leading to a larger conflict. These are small things which keep happening. Proxy wars. Sometimes you have to, just accept that yes, you were surprised and get back quickly on your feet. दोबारा खड़े होके दोबारा अपना लड़ाई शुरू करना है. So it is just that which has probably happened, and we are absolutely capable. The Indian Army has never let down the nation, even when it was the toughest of times. And the complete surprise during Operation Vijay, or whether it was a planned war with Pakistan during the Bangladesh liberation. So either way, we have always come out with flying colors. And is baar bhi, there is no doubt that the Indian Army will prove its mettle. Right, sir. Colonel Sharma, will come to you as well. Any concluding comments, and especially since we have commemorated 25 years of Kargil Vijay Divas, of that war that we won, and you being a veteran also and being part of this Hearts to Brave Hearts campaign as well, paying homage to all those warriors who laid down their lives at the altar of motherland. So a word for those warriors who sacrificed their everything for the country, and any message that you'd like to share to the youth as well. मैसेज हम काफ़ी शेयर करते आए हैं यूथ के साथ ड्यूरिंग दिस कैंपेन रैली ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा. बट मैं एक बार दोबारा बताना चाहूँगा कि व्हेन इट इज़ टफ ना, और जब कुछ देश पे आता है तो उस टाइम पे इंडिया एक हो जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. और कारगिल वार की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे इट वाज नॉट वन बाय आर्मी, इट वाज वन बाय ऑल इंडियंस. ठीक है सर, विल बी एग्री विद मी. मेरे को पता है कि जब गुमरी से हम द्रास की तरफ जा रहे थे फॉर दिस बैटल, हम हैदराबाद से आए थे, तो यू नो व्हाट हैपेंड कि रास्ते में 10, 12, 14 ट्रक, कोई पंजाब नंबर के, कोई हरियाणा के, कोई जम्मू नंबर के जले पड़े हैं. उनके ड्राइवर क्लीनर जो है वो वहीं पे दे गॉट किल्ड. तो दे वर पार्ट ऑफ वार ओनली, क्योंकि जो बम्बार्डमेंट हमारे लिए बनी हुई थी उसी में वो भी गए हैं. उसके बाद जब हम द्रास पहुंचे और द्रास के आगे जैसे भी हम पहुंचे कारगिल, तो मतलब है कि थाउजेंड्स ऑफ वोटर्स जो जम्मू से अच्छे घरों के, फ्यू वर नोन टू मी, वो वहां पर पहले से खड़े थे कि फौज को जाके तुम आगे लड़ो, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, ये रसद, अम्युनिशन, आर्म सब हम पहुंचाएंगे, यू गो एंड फाइट. लोकल जो कारगिल द्रास वाले थे या बटालिक वाले थे, तो बुद्ध गरबू वाले थे, वो सारे आके उन्होंने महीनों काम किया है और 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने आर्मी से. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कम्स यूर जलंधर. उस टाइम पे पंजाब केसरी एक पेपर आया था, और उस पेपर में मैंने पढ़ा था कि जलंधर रेलवे स्टेशन पे जो क्या बोलते हैं उनको किन्नर, हम हमारे इधर जम्मू में हिजड़ा बोलते हैं, बोला उन्होंने 10 लाख रुपए इकट्ठे करके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भेजे हैं कि ये लड़ाई के ऊपर लगाओ, हमारी फोर्सेस के ऊपर लगाओ. तो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम सेइंग कि ये लड़ाई जो है नॉट ओनली आर्मी, इट वाज वन बाय इंडियन, ऑल इंडियंस. लेकिन जब ये पीरियड होता है ना, उस टाइम पे हम फौज को भी भूल जाते हैं, और उस टाइम पे हम वो स्पिरिट भी कम दिखाते हैं. तो ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए हमेशा. सारे इंडियंस को ये करना चाहिए कि हमेशा अपनी फौज को मोटिवेट रखो, सपोर्ट रखो, और उनको
इतना कर दो बस, बाकी वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं आपको। सो Right. आज भी उसी की जरूरत है। आज J&K is facing tough time, although it is a temporary period. आर्मी अपना रोल तो निभाएगी, लेकिन आपकी तालियां और आपकी शाबाशी जो है ना, it will further boost them. बिल्कुल बिल्कुल, very rightly said by Colonel Sharma also. And we have two Kargil war veterans here who share their wisdom, share their experience and the understanding कि जो जम्मू कश्मीर में जो बढ़ते हुए हालात हैं, जो मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स जो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से किस तरह का रुझान बन रहा है और हमारी आर्मी किस तरह से तैयार है. They mentioned that how our army is prepared to completely tackle all the challenges, and we will definitely, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे भी रहे हैं और देंगे भी. और आने वाले कुछ दिनों में इस जो भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इसको हम बंद करने में यकीनन कामयाब होंगे. तो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू, कर्नल आके शर्मा and Colonel Ajaydeep, for joining us for this very interesting Thank you. discussion, and it was an honor and privilege. Very much, Navjot. Thank you, sir. Thank you. It was great honor meeting Thank you. Ajay sir. Yes, mutual Colonel RK, बहुत बढ़िया लगा सर आपको मिलके. And Navjot, thank you for bringing us together on this lovely platform. No, it was my Right. you know, my privilege to have an audience with two veterans, two decorated officers, and learn from you guys. I mean, it was a real privilege, and hopefully we'll continue to have such sessions in future as well. We would like to learn from your great wealth of experience. So thank you so much, very and much. Jai Hind to all the audience. Bye. Jai Hind to all the audience as well. Jai Hind. Bye. See you, sir. Jai Hind, sir.